sulfonic acid SO3H. When these groups are compounded with or added with the alkane forms sulfonic acids group or compounds. In this alkane added with sulfone groups SO3H, and IUPAC nomenclature of such compounds are done by adding suffix sulfonic acid to alkane. Here the example. So IUPAC name compound which contains sulfur group SO3H are known as sulfonic acid, and IUPAC name by adding sulfonic acid to the alkane as suffix. Here the example of ethane sulfonic acid. This is ethane and SO3H group whole called ethane sulfonic acid. Similarly, here the another substituted long chain compound 5-methyl 2-hexane sulfonic acid. Numbering start from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. On 5th position there is substitution of methyl group. On 2nd position it is a sulfonic acid group, hence the name is 5-methyl 2-hexane sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें सल्फोन ग्रुप लगा रहता है. सल्फोन ग्रुप होता है SO3H. एल्केन कंपाउंड पे जब ये SO3H लगे रहते हैं तो उनके IUPAC नामकरण में एल्केन के बाद सुफिक्स सल्फोनिक एसिड लगाया जाता है. उदाहरण के तौर पे यहाँ पे है इथेन सल्फोनिक एसिड, जिसमें इथेन और ये सल्फोन के साथ जो है लगा हुआ है सल्फो ग्रुप, और इसका नाम इथेन सल्फोनिक एसिड है. उसी तरह से ये लॉन्ग चेन सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड है कंपाउंड में 5-methyl 2-hexane सल्फोनिक एसिड है. 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन का है. दूसरे कार्बन पे सल्फो ग्रुप लगा हुआ है, पूरा नाम 5-methyl 2-hexane सल्फोनिक एसिड. Nitro compounds. Compound containing nitro groups are nitro compounds, and IUPAC naming of such compounds are done by prefixing nitro to alkane. For example, nitromethane, nitropropane. Here is an example. It's a methyl group, nitro group named as nitromethane, and in this case, a hexane substituted CH3 on 5th position and 2nd position nitro group, hence named as 5-methyl 2-nitrohexane. Cyanides or nitrile in which CN group are attached. So compounds containing nitrile CN group, numbering including the nitrile carbon. Here is the example: ethane nitrile or methyl cyanide. Ethane nitrile or methyl cyanide, and here it is pentane nitrile और N-butyl cyanide. नाइट्रो ग्रुप्स वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ रहता है, और ऐसे केमिकल कंपाउंड का जो नामकरण किया जाता है उसमें प्रीफिक्स में नाइट्रो लगा दिया जाता है एल्केन के नाम के सामने. जैसे यहाँ पे नाइट्रोमीथेन है और यहाँ पे 5-methyl 2-nitrohexane. साइनाइड और नाइट्राइल ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें CN ग्रुप लगे हुए रहते हैं, और ऐसे कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो CH3CN. इसमें जो नाइट्राइल है उनकी भी कार्बन को नंबरिंग में लिया जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ इथेन नाइट्राइल. और अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूशन देखें साइनाइड के साथ तो मिथाइल साइनाइड कहलाया जाएगा. यहाँ पे ये पेंटेन कंपाउंड्स हैं, इसमें पेंटेन नाइट्राइल या फिर N-butyl cyanide. N-butyl cyanide मीन्स जो ब्यूटाइल ग्रुप को लिया गया हुआ है वो नॉर्मल ग्रुप है, कोई उसमें आइसोमर्स नहीं है, इसलिए उसको N-butyl cyanide कहा गया है. When nitrile groups are on substitution on carbon chain, then are named as cyano group. So the prefix cyano is used for the nitrile group when occur as a substituent. In that case, carbon atom of nitrile is not numbered. Here example is 3-cyanobutanoic acid. It's a butanoic acid. On 3rd position there is cyano group, hence named as 3-cyanobutanoic acid. जब कार्बोनाइट्राइल और CN ग्रुप
एक सब्स्टिट्यूशन की तरह यूज़ किया जाता है, तब साइनो उसमें प्रीफिक्स की तरह जोड़कर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। और इसमें जो साइनो ग्रुप का कार्बन होता है उसको नंबर्ड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है 3 साइनो ब्यूटेनोइक एसिड। Amines are derivative of ammonia in which one or more hydrogen of ammonia are replaced by alkyl or aryl group. On the basis of removal of or replacement of hydrogen of ammonia, it may be primary, secondary or tertiary. When one hydrogen removed by the alkyl or aryl group, it is primary amine, and 2 secondary amine when whole hydrogen of nitrogen has been replaced by alkyl or aryl group is tertiary amines. एमीन्स अमोनिया के वो डेरिवेटिव्स हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है अमोनिया के वो एल्किल या एरिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं। इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन होते हैं, जो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन के कितने हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाता है एल्किल और एरिल ग्रुप से तो ये प्राइमरी अमीन्स कहलाते हैं। अगर इनके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाते हैं एल्किल और एरिल ग्रुप से तो ये सेकेंडरी अमीन कहलाते हैं। अगर इनके तीनों हाइड्रोजन जो है अमोनिया के वो रिप्लेस किए जाते हैं एल्किल और एरिल ग्रुप से तो इनको टर्शियरी अमीन्स कहते हैं। इन कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ एमीन, amines are named by adding suffix to the alkyl groups, and that suffix is amine to the name of the alkyl group or groups. The name of the alkyl groups are arranged in alphabetic order. Here the example: methylamine, one hydrogen replaced by methyl group. In this 2 hydrogen are replaced by methyl group, hence dimethylamine. And here 3 hydrogens are replaced by methyl groups, trimethylamine. In this it is isopropylamine, ethyl methylamine. Here one hydrogen replaced by methyl, other is ethyl, so ethyl E come first than M of methyl, so ethyl must be written first. It is alphabetical in order. Ethyl methyl amine. Similarly here it is ethyl dimethyl amine. Here all the hydrogen are replaced by 2 hydrogen are replaced by methyl group, 1 by ethyl group, so it's named as dimethyl ethylamine. So here ethyl comes first and dimethylamine comes after it, but both are as a prefixes to amine. अमीन्स का अगर हम कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम देखें तो इसमें एल्किल ग्रुप के सुफिक्स मतलब बाद में जो है अमीन वर्ड लगाया जाता है, इससे इनका नामकरण किया जाता है। और जो एल्किल ग्रुप रहता है इसमें हम उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे उदाहरण जैसे है ये मिथाइलमीन, इसमें एक हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल्स के द्वारा रिप्लेस किए गए हुए हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन मिथाइल के द्वारा रिप्लेस किया गया और डायमिथाइलमीन, इसमें 3 हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल के द्वारा रिप्लेस किया गया है, ट्राइमिथाइलमीन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आइसोप्रोपाइल के द्वारा रिप्लेस किया गया है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अमीन। ये जो रूल है कि एल्किल ग्रुप्स को हमको अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें एक हाइड्रोजन मिथाइल के द्वारा रिप्लेस किया गया है और दूसरा हाइड्रोजन इथाइल के द्वारा रिप्लेस किया गया हुआ है। अब इस इथाइल और मिथाइल में इथाइल का ई और मिथाइल के एम से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए इसका नाम हुआ इथाइल मिथाइल अमीन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जो है वो मिथाइल ग्रुप के द्वारा और एक हाइड्रोजन जो है वो इथाइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूल के हिसाब से सबसे पहले इथाइल, फिर उसके बाद डाई मिथाइल अमीन लिखा जाएगा। इसमें डाई मिथाइल में डाई का इम्पोर्टेंस नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि ये डाई मिथाइल के नंबर्स बता रहे हैं और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो उसका नाम जो है एम से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम इथाइल को कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले, सो इसका नाम हुआ इथाइल डाइमिथाइल अमीन। इस तरह से जो है अमीन्स के कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है।
In IUPAC nomenclature system, amines are named as primary amines are named by replacing the final E of parent alkane by amine. If necessary, a number is added to indicate the position of NH3 group. For example, here ammonia one hydrogen has been replaced by this ethyl group, so name is ethenamine. Ethane, ETHANE, E has been replaced by amine, so name is ethenamine. Here the second example, 2-propanamine. On second position there is amino group, so it's named as 2-propanamine. PROPANE. E has been replaced by amine, so 2-propanamine. In case of secondary and tertiary amines, naming has been done as the secondary and tertiary amines are named as N substituted derivatives of primary amines. Like this is the primary amine. If these two hydrogen have been replaced by another alkyl group, then longest one be taken as a parent and rest are taken as the substituent, and that should be named as N substituted derivative. If there is 2-methyl group on this nitrogen, then name will be N and dimethyl ethenamine. It is like this. अमीन्स का अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम देखें तो इस नोमेनक्लेचर सिस्टम में जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनके जो नाम लिखे जाते हैं पेरेंट एल्केन का ई हटाकर वहाँ पे अमीन जोड़ दिया जाता है एज अ सफिक्स। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे हमें उनकी नंबरिंग भी करनी चाहिए, और जहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उदाहरण के लिए यहाँ पे देखते हैं इथेनामीन, ये इथेन है, एमीन इथेनामीन, और ये 2-प्रोपेनामीन। सेकेंड पोजीशन पे अमोनिया ग्रुप है तो 2-प्रोपेनामीन। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के नामकरण करने के लिए हमें नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स लेते हैं। मान लीजिए अगर इस पे एक हाइड्रोजन और जो है वो मिथाइल के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया हुआ है तो इसका नाम होगा एन मिथाइल इथेनामीन। अगर दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर दिया गया हुआ है मिथाइल से तो एन एन डाई मिथाइल इथेनामीन। इस तरह से जो है सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के नामकरण किए जाएंगे। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स आर named as N-substituted primary amine. Groups attached to nitrogen atom are chosen which have the longest chain as the primary amine, and others are N-substituted. The largest of the group attached to the nitrogen is chosen as the organic group of the primary amine. The remaining alkyl group named as substituents by using the prefix N to indicate that they are attached to nitrogen. Here the example N-methyl ethenamine. Methyl attached to nitrogen, so and here N-methyl butanamine. In on N there is methyl group and ethyl group, so N-methyl butanamine. Here 2-methyl and dimethyl butanamine. In this, a carbon chain is there with methyl substitution on second and substituted with dimethyl group. Hence, first the substitution of main carbon chain has been written here to methyl. Then after N dimethyl butanamine has been written. आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में अमीन्स में जो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स होते हैं वो प्राइमरी अमीन के डेरिवेटिव्स की तरह लिखे जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। तो नाइट्रोजन, so the largest of the group attached to the nitrogen is chosen as the organic group of the primary amine. The remaining alkyl group named as substituent by using the prefix "and" to indicate that they are attached to the nitrogen atom. तो इसमें जो बाकी जो है उनको नाइट्रोजन के सब्स्टिट्यूशन पे माना जाएगा। यहाँ पे जैसे एन मिथाइल इथेनामीन है, नाइट्रोजन पे मिथाइल और इथाइल दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसमें इथाइल ग्रुप जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होने के कारण वो प्राइमरी अमीन के अंदर आएगा, और बाकी ये इस पे सब्स्टिट्यूशन आएगा, इसलिए नाम लिखाएगा एन मिथाइल इथेनामीन। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामीन। नाइट्रोजन पे इथाइल और मिथाइल जो है दोनों सब्स्टिट्यूटेड है, और ब्यूटेन चेन जो है इसमें
प्राइमरी अमीन की तरह कंसिडर किया जाएगा, इसलिए नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामीन। और इस मिथाइल इथाइल में इथाइल का वर्ड ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनामीन। हियर एग्जांपल में ब्यूटेन चेन पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो प्राइमरी अमीन का है उसका सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, 2 मिथाइल एन एन डाइमिथाइल ब्यूटेनामीन। इस तरीके से जो है अमीन्स के नोमेनक्लेचर किए जाते हैं।